Good morning, students. Today we are going to revise diagram. In your syllabus, you have different diagrams. Not two. I am telling you just a minute. First chapter में से है conventional symbols. Conventional symbols आपको पता होने चाहिए. These can be asked. Conventional symbols. Today we have to draw conventional symbols, and in second chapter, diagram of important parallels, and in third chapter, diagram of zone, climatic zone. These are the three diagrams which you are to draw today. For this, I will tell you parallel, important parallel, all क्लाइमेटिक जोन वाला जो डायग्राम है, बोथ आर सेम, दोनों सेम है, ड्रॉ करना बिल्कुल सेम है. कम हियर. So diagram of climatic zone and diagram of important parallel ड्रॉ एकदम से सेम करना है, बस लेबलिंग चेंज कर देनी. सो ओपन योर नोटबुक्स. टुडे वी विल ड्रॉ दिस डायग्राम with the help of compass and scale. Yes, you can do on your rough notebook also. If you will use Bengal, then this diagram will be wrong. For this, you are to draw the diagram with the help of compass and scale. Then only your diagram will be correct. Otherwise, you will face problem. Huh? Yes. दो हम बनाएंगे सर्कल्स, क्योंकि डायग्राम दोनों का सेम है, लेबलिंग चेंज है. तो दो डायग्राम हम बनाएंगे अभी इसी टाइम. I will draw on the board. You people must draw in your notebooks. Open your notebooks, students sitting at home also, and switch on your camera so that I can see you. Switch on your cameras. I want to see whether you are drawing or not. And tomorrow we will do map. मैप भी आपके दो है, वर्ल्ड मैप एंड इंडिया. वर्ल्ड मैप में हम लोगों ने क्या किया था पिछली बार? यस, ग्रासलैंड्स. वी फिल्ड ग्रासलैंड्स एंड ओशन कॉन्टिनेंट. Ocean continents and grassland that we will do in the world map, world physical map. I will write a note in your diary also. You are to bring the map. And India political map, where you are to fill important centers of the revolt. India political map और world physical map दोनों आपके पास होना चाहिए. ये ना हो कि कल आपको मैम मेरे पास वर्ल्ड नहीं है या मेरे पास इंडिया नहीं है. दोनों मैप की प्रैक्टिस होनी है, तो दोनों मैप आप लेके आओगे. इज इट क्लियर? सो नाउ लेट्स स्टार्ट ड्राइंग. Wherever you want. Practice है ये. You are to draw 2 circles. Here I am going to draw it.
So one circle is ready. Another circle I am going to draw here. See. Yes. Can anyone tell why I have drawn two circles? Yes, Piyush. No. Very bad. Yes. Very good. One for important parallels and one for zones. So I am going to write here important parallels. And this one is climatic zones. बनाने बिल्कुल एक जैसे. Is it clear? Betty, close the door. I'm not able to see. So here from the center, compass की पेन जहां पे रखी थी, नीडल जो रखी थी, दिख रही है? Yes. From this center, mark one line. This way. और दूसरी तरफ भी ड्रॉ करो. मैं दोनों इसलिए साथ साथ ड्रॉ करवा रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस भी पता चले. इज इट क्लियर? ये वाला जो है ना क्लाइमेटिक जोन में, यहाँ पे बहुत लाइट बनानी है. बहुत लाइट. सेंटर दिख रहा है? ये डॉटेड बना लो आप. डॉटेड समझते हो? This is straight line and this one is dotted line. There is some reflection. So now नहीं बेटे, रिफ्लेक्शन बाहर से आ रही है. नो प्रॉब्लम, चले. सो नाउ आफ्टर ड्रॉइंग दिस you are to draw another parallel. You can leave one line. सेम जितना डिस्टेंस ऊपर रखा है उतना ही डिस्टेंस नीचे रख के you are to draw lines on the both sides of the equator. Equator के दोनों sides पे you are to mark the lines. ओके कितनी लाइंस ड्रॉ कर ली हमने? वन सेंटर में, सेकेंड नॉर्थ साइड, थर्ड लाइन सदर्न हेमिस्फीयर में. क्लियर? अब यहाँ पे जितना गैप है ना उससे थोड़ा सा ज्यादा गैप ऊपर रखेंगे. इज इट क्लियर? यहाँ पे मैंने एक स्केल ऐसे आ रहा है. नाउ आई विल कीप मोर gap and I will draw another line here, this, and at
टोटल लाइन हमने कौन सी ड्रॉ करी? वन सेंटर में, जिसका नाम रखा 0 डिग्री, उसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ, नीचे 23.5 डिग्री साउथ। ये लाइंस को बता रहा है। ओके, यहाँ पे हम लाइंस को मार्क कर रहे हैं। नेक्स्ट है 66.5 डिग्री नॉर्थ। बिल्कुल लाइन के सामने लिखना है तुम लोगों ने। वेयर इज योर कंपास? 66.5 डिग्री साउथ। और जो सेंटर पॉइंट था उसके बिल्कुल ऊपर नॉर्थ में डॉट लगा दो, साउथ में डॉट लगा दो। दिस इज 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। ये लेबल कर लिया। अब हमने पैरेलल्स के नेम लिख दे। व्हाट विल वी राइट? नेम ऑफ द पैरेलल। बेटे अपनी कंपास इसको दे दो। कंपास ही नहीं नो से। चलें। व्हाट इज द नेम ऑफ द 0 डिग्री लैटिट्यूड? तो इसके बिल्कुल सामने हम लिख देंगे EQUATOR इक्वेटर। 23.5 डिग्री नॉर्थ का क्या नाम है? अंकिता मिल्टन। 23.5 डिग्री नॉर्थ का क्या नाम है? हाँ, स्पीक लाउडली। व्हाट शी सेइंग? मैं जोन की तो बात ही नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द पैरेलल्स। हर्ष, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट 66.5 डिग्री नॉर्थ का क्या नेम है? लवली। आर्कटिक सर्कल, इसका क्या नेम है? आर्कटिक सर्कल। अब देखो, आई एम जस्ट राइटिंग इन फ्रंट ऑफ दैट पैरेलल। मैं उस लाइन के सामने लिख रही हूं और कई बच्चे इसमें लिख देते हैं। दैट विल बी रॉन्ग। ओके, पेंसिल से ड्रॉ करो, पेंसिल से लेबल करो आर्कटिक सर्कल। ओके, गुड सिमरन। 90 डिग्री एंड को क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल। ये इसके बिल्कुल साथ लिख रही हूं, नॉर्थ पोल। यस, नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पैरेलल? हर्षोहा मिल्टन। Yes, Tropic of Capricorn. Capricorn, CORN, R भूल जाते हो लिखना। Tropic of Capricorn. Next 66.5 डिग्री को क्या कहते हैं? पीयूष? Antarctic. Antarctic circle. What do we call 90 degree and half degree south? This South Pole. Here in this diagram, you need not to fill any color. Simple आप पैरेलल्स बनाओ और उसको अच्छे से लेबल करो।
ठीक है, अब सेम डायग्राम आपने सेम पैरेलल्स वैसे ही बनाने हैं, सिर्फ मार्किंग लेबलिंग जो है वो डिफरेंट है. आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट, जस्ट ए मिनट. Now it will be visible to the students. Same way, we will mark 2 lines. One north side, second south side, southern hemisphere. Then northern hemisphere में once again, southern hemisphere में once again. मीन्स टोटल 5 लाइन आपने बनानी है, एक सेंटर में, 2 ऊपर, 2 नीचे, सिंपल. ठीक है, अब हम इसको मार्क करेंगे. बन गया हमारा. अब हमने इसकी मार्किंग करनी है. सेम वे, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ. एक लेबलिंग बिल्कुल सेम है जैसे हमने पैरेलल्स में करी थी. सेम वे, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ. ठीक है, अब हमने इसको जोन में चेंज करना है, जोन के बारे में बताना है. अब हम इधर नहीं मार्किंग करेंगे, इधर लेबलिंग नहीं करेंगे, अब हम इसके सेंटर में लेबलिंग करेंगे. तो इक्वेटर जहां पे हमने डॉटेड लाइन लगाई है, ये सेंटर है, उसके ऊपर से लेके नीचे तक ये कौन सा जोन है? टॉरेड जोन. इसका नाम क्या है? टॉरेड. दिस इज टॉरेड जोन, जिसको आप येलो कलर से शो कर सकते हो. कलरिंग बाद में करेंगे. स्केल भी नहीं है तेरे पास. I am not able to say it. Then टॉरेड जोन के बाद ऊपर वाला जो जोन है, दिस इज रुचित. आपने टेम्परेट जोन लिखा है, गुड, बट स्पेलिंग रॉन्ग है बच्चे. So this one is टेम्परेट जोन, क्योंकि ये नॉर्थ में है, हम इसको नॉर्थ टेम्परेट जोन भी कह सकते हैं. नॉर्थ टेम्परेट, PER आता है, नॉर्थ टेम्परेट जोन. हाँ जी, क्योंकि ये पूरा है, इक्वेटर सेंटर में ही आता है. हाँ, अकेला टेम्परेट जोन में लिख सकते हो. नॉर्थ तो बस आपको बताने के लिए आप ब्रैकेट में लिख दो नॉर्थ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ना भी लिखो तो तब भी चलेगा. लिखना है लिख दो, नहीं लिखना तो भी चलेगा. दिस इज टेम्परेट जोन इन साउथ. अकेला टेम्परेट जोन भी लिख सकते हो. साउथ लिखना है तो ब्रैकेट में साउथ भी लिख सकते हो. दिस वे, दोनों तरह मैं लिख रही हूँ. टेम्परेट जोन नॉर्थ, टेम्परेट जोन साउथ. Then comes 66 के से लेके 90 तक, 66.5 से लेके 90 तक, this zone is
फ्रिजिड जोन, वेरी गुड. नॉर्थ में भी, साउथ में. सो फ्रिजिड जोन, yellow, green, pink. Next is frigid zone in the north, frigid zone in the south. If you don't have space here to write, तब आप एरो डाल के भी फ्रिजिड जोन लिख सकते हो. ओह इतना छोटा, ये दिस इज रॉन्ग. ये इतना छोटा थोड़े ना बनाओगे. दिस इज रॉन्ग डायग्राम. रॉन्ग डायग्राम है, दोबारा से बनाओ इसको. पिछला दिखाओ जरा कैसे बना रही हो. देखो जरा, बिल्कुल 66 से लेके 90 तक इतना ही रहेगा क्या? थोड़ी कंपास को और खुली करके फिर बनाओ. यस, फिल कलर नाउ. Now this is the diagram of climatic zone. We have 3 climatic zones: torrid zone, temperate zone, temperate zone दोनों में, frigid zone दोनों में. टॉरिड जोन भी एक्चुअली में दोनों में है, नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है, लेकिन बीच में इक्वेटर आ जाए. है तो दोनों तरफ ही ना. सो टॉरिड जोन को हम फिल करेंगे येलो कलर से. आई एम वेटिंग फॉर द कलर चॉक्स. लेट मी सी. So this is torrid zone. We will fill yellow color here. So this is torrid zone. ठीक है. अब ग्रीन कलर का चौक नहीं है तो ग्रीन कलर का बोर्ड ग्रीन को शो कर रहा है. टेम्परेट जोन ग्रीन कलर. देन फ्रिजिड जोन ब्लू कलर से करेंगे क्योंकि फ्रिजिड जोन इज कवर्ड विद स्नो ऑलवेज. तो स्नो हम या तो व्हाइट से शो करना नहीं चाहते क्योंकि व्हाइट कलर विजिबल नहीं होता. सो आई एम यूजिंग ब्लू कलर. हाँ जी, लाइट ग्रीन. Can shade blue color here in this zone. So I'm going to write again. Is it so here I will write by marking arrow. Arrow marking करके भी इधर हम लिख सकते हैं frigid zone. Is it clear? Is it clear? Yes. So now let me check your diagrams, and after drawing this you are to draw any 5 conventional symbols. Any 5. Draw any 5 conventional symbols. Draw any 5 conventional symbols. Draw your notebooks. Colors you can fill later on.
बेटा दिस इज अगेन रॉन्ग। तेरा देख कितनी लाइन मार्क बनाई तू, 1 2 3 4 5, कितनी लाइन है? 1 0। तो इतनी फास्ट में क्यों बना रही है? दिस इज द सेंटर। 1 2 लाइनें छोड़ी, 1 2 3 लाइनें, 3 लाइनें की बजाय यहाँ पर कर देना, 2.5 छोड़ दे। इससे थोड़ा सा तो फ्रीजिड जोन थोड़ा सा तो दिखे, तुम्हारा दिख ही नहीं रहा है बच्चे। Yes, good. I am going to show you few notebooks. You can see this way. Bring it here. No, important parallels में कलर करने की जरूरत नहीं है. Another notebook I will show you. See, very much visible, very much clear. And the next notebook I will show you this way. इसके स्पेस नहीं था, इसने दोनों इकट्ठे बनाए हैं. पेन से मार्किंग कर दी है, आप पेंसिल से ही मार्किंग करना. और फिजिट जोन यहाँ पे नहीं लिखा जा सकता था, तो शी हैज पुट एन एरो टू लेबल फिजिट जोन. इज इट क्लियर? दोनों साइड पे एरो डाल के फिजिट जोन शो कर दिया है. सो दिस इज गुड. And parallels are drawn in this manner. Okay, so another notebook wrong है बच्चे. टेम्परेट जोन बड़ा होना चाहिए. ये देखिए पैरेलल, ये ना यहाँ पे ये क्या मिस्टेक है मैं बता रही हूँ, ये गलत है. देखो ये गैप, ये चौड़ा ज्यादा है, ये कम चौड़ा है. दोनों पैरेलल होने चाहिए. जितना गैप यहां से लेके इतना है उतना ही नीचे भी होना चाहिए. चाहे स्केल से आप मेजर कर लो, स्केल से चाहे आप मेजर कर लो. कई बच्चे क्या करते हैं, टॉरेट जोन से यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ दिया, नीचे 4 सेंटीमीटर पे मार्क कर देते हैं. तो ये दोनों 5 या 3 या कोई भी नंबर ले लो, दोनों पैरेलल होने चाहिए. इज इट क्लियर? अगर आप लाइंस का हिसाब रख रहे हो तो लाइंस दोनों तरफ, अगर इक्वेटर से ऊपर 2 लाइंस छोड़ रहे हो तो नीचे 2 छोड़ो. टेम्परेट के लिए 4 छोड़ रहे हो तो 4 छोड़ो, नीचे भी पैरेलल होने चाहिए. इज इट क्लियर? So that's all for today. Draw conventional symbols and bring map tomorrow.